we begin. So reaction types, out of which one we have done in detail, redox reaction. So we start first with what type of reaction? Combination reaction. ठीक है? Don't expect questions to come like define combination reaction, ऐसा आता नहीं. Identify करने दे सकता है आपको combination reaction. Combination reaction standard format is A plus B gives you AB. Two or more substances combined to give you one substance. ठीक है, शॉर्ट में लिख लीजिए, two or more substances. Now these substances can be elements, they can be elements and compounds, or compound and compound. Two or more substances combined and they will give you single substance. Single substance. Obviously, when I say two or more substances, these substances can be elements, okay, can be compounds, and obviously when you form a single substance, you have to be a compound. और seriously देखे तो एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूल और एटम मॉलिक्यूल, क्योंकि एलिमेंट तो एटम भी हो सकता है ना. और भी आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो एलिमेंट क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है. एलिमेंट क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल भी हो सकता है. नेवर मेस अप ऑन दिस. एन एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, व्हेन यू सी एज O, इट इज एटम. व्हेन यू सी एज O2, इट इज अ मॉलिक्यूल. वो कंपाउंड नहीं है. कंपाउंड हमेशा ही मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, और कंपाउंड यहां पे भी आपका मॉलिक्यूल ही होगा. Any query on this? Have you understood? Two or more substances combine together to form one substance. Such a reaction will be known as combination reaction. Now we'll write some combination reactions which are generally, that is like enough. उतने reactions जानने से आराम से हो जाता है आप. ठीक है, चलें. So shall we write? आइए. Number 1, C plus O2 gives you CO2. I'll wait for you all, but please write down what is C. C is carbon. We have inverter. So O2 is oxygen. Only that light is not on inverter. Rest all are on inverter. O2 means oxygen and CO2 means carbon dioxide. Done? Written? Okay. Always write everything. Okay. Then Fe plus S. You always need heat to it. This is FeS, iron sulfide. Do you remember this reaction when we used to study in grade 9, and we used to say that in a reaction, new substances with new properties are formed. आपको इसमें वो भी दे सकता है. Iron will be magnetic in nature. Sulfur is non-magnetic. अगर हम इन्हें ऐसे ही mix करें, तो you can bring a magnet and separate out the entire iron. But if you heat it, इसको अगर हमने heat कर दिया, then it forms a black substance which is known as ferrous sulfide. Ferrous sulfide पे अगर हम magnet लगाएंगे, you will not see any magnetic property. This is another example of chemical reaction is a chemical change. New substances with new properties. इस ये magnetic है, ये लेकिन magnetic नहीं है. Clear? Yes. Triangle means heat. Triangle means heat. Okay. Write down. Triangle means heat. Okay. Now next. All these reactions somewhere you have studied. CaO. What is CaO? Calcium oxide. Also known as quicklime. Also known as quicklime. Calcium oxide को हमने पानी के साथ मिक्स किया. पेंटर वाला काम कर रहे हैं. और हमारा क्या बनेगा? Slaked lime, which is calcium hydroxide. CaOH2. Clear? What is NH3? लिखते जाइए और नाम लिखते जाइए. NH3 is ammonia. Ammonia is a gas. Industrial item है, इसका बहुत यूज है. Ammonia reacts with HCl. यहाँ HCl भी is in gaseous form. It forms ammonium chloride, NH4Cl. Hydrogen chloride, HCl aqueous होने से it is acid. Hydrogen chloride is a gas also. HCl जो आप एसिड समझते हैं ना, तब उसे हम AQ लिखते हैं, aqueous. HCl is also a gas. Hydrogen chloride is also a gas.
Clear? Ammonia, AMMONIA. Ammonia reacts with hydrochloric acid and it gives you ammonium chloride. Then carbon monoxide's formation, C plus O will give you CO. C should burn in what? O2. No, कितना सुंदर स्टोरी है, समझिए पहले. विलेजेस में हम कहते हैं कि पीपल कुक इन फायरवुड एंड ऑल, दैट इज नॉट गुड, रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड, not good for health and all. So hello, थोड़ा धीरे करो भाई. So C plus O2, O2 means full oxygen. Okay, whenever you are not given complete oxygen, firewood needs a lot of oxygen to burn, so it will burn in insufficient oxygen. तो पूरा O2 नहीं मिलता है, क्या मिलता है? Only O. C plus O makes it CO, carbon monoxide. That is incomplete combustion. C plus O is not exothermic, endothermic है वो. C plus O को आप exothermic मत लिखिएगा. और हीट देना है तब एक और O के साथ वो कंबाइन करेगा. So the reaction that we are writing out here is carbon monoxide. This is what people in villages are suffering from if they are not cooking in sufficient oxygen. ये पैदा हो रहा है, ये आपकी सेहत के लिए खराब है. So this will react with additional oxygen. अब ये क्या बनेगा? CO2. That's why you are supposed to cook in well ventilated room. Formation of carbon monoxide is not an ये exothermic reaction हो जाएगा. C plus O2 is a exothermic reaction. हाँ CO plus O2. No, why O3? Balance this, ये भूल गया ना. Try to understand the reaction. Carbon burns in oxygen to give you carbon dioxide. That is the normal process. That will be an exothermic reaction. कोयला हमने जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, बहुत सारा हीट निकलेगा. जब आप इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में किसी चीज को जलाते हैं तो कार्बन विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. ये मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन चाहता है, ज्यादा ऑक्सीजन हमने दिया, अब कंप्लीट कंबस्शन हुआ है, अब जाके CO2 निकला. ठीक है. सो सम मोर. ये अक्षर इसके लिए, आतिश के लिए, H2 plus Cl2 2HCl. हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड. अब आपको देख के समझ में आ रहा है. सी इन एवरीथिंग यू हैव गॉट A plus B gives you AB format. Number 6. Na, yeah, 1 minute beta, gives you NaCl. Let's balance it. 2Na plus Cl gives you 2NaCl. What is Na? Sodium reacts with chlorine as a gas to give you sodium chloride. Yes, somebody had a question, please. So the second one, Fe plus S gives you Fe. What is that? Okay, that triangle means beta heat. This is a heat intensive reaction. आपको heat देना पड़ता है. Triangle as a formula stands for, sorry, as a symbol stands for heat. And if you write something like this, this means sunlight. सूरज की किरणें गिर रही है. This is sunlight. And what have you written in the first one? What have you written below NH3? Below NH3, gas I have written, beta. NH3, ammonia is a gas. G. NH3 reacts with hydrogen chloride as a gas to give you ammonium chloride. ठीक है? इतना तक हो गया? This could you recognize? What is it? Sodium reacts with chlorine. Cl2 means chlorine gas. Forms what? Sodium chloride. This is what you eat every day in the form of salt. Sulfur dioxide, SO2, reacts with oxygen. And this will give you sulfur trioxide, SO3. ठीक है? So SO2, SO3. So we will make it 2 this side and 2 this side. This is sulfur dioxide. Reacts with oxygen. ये आपको 11 में ये रिएक्शन बहुत आएगा. कॉन्टैक्ट प्रोसेस करके आपको पढ़ाएगा. व्हाट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस? सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड. This concludes all the different type of reactions that you can ever think in your CBSE grade 10 purpose for combination reactions. इनको एक बार लिख के रख लीजिएगा, एग्जाम के टाइम में आप देख सकते हैं. SO2 is sulfur dioxide. 2SO2 तो बैलेंस करने के लिए डाला बेटा. सल्फर डाइऑक्साइड, देखो डाइऑक्साइड का मतलब क्या था? डाई मतलब 2, डाइऑक्साइड, और ये ट्राइऑक्साइड.
जैसे आप H2O पीते हो, आपने उसको वाटर नाम दिया है, केमिकल नेम क्या होगा? डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। एक ऑक्साइड है और दो हाइड्रोजन है, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। क्लियर? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। चलें आगे। एनीवन लेफ्ट? एनीथिंग? 3 2 1 change. Come, now we will do decomposition. कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस कम ही आते हैं, डिकम्पोजिशन से आते हैं ज्यादा। Decomposition reactions will always be energy intensive. हमने पढ़ा था मैक्सो बेंडो। जब आप ब्रेक करते हैं ना तो वो एंडो होता है। सोचो ना, कोई भी चीज, जैसे पहले लोगों के बीच में यूनिटी होता था, अगर यूनिटी तोड़ना है तो किसी को कोई ब्राइब करता है, पैसे देता है। तो इतने तुम वॉर के मूवीज देखते हो, उसमें क्या होता है? कल तुम अपनी सेना मत भेजना उनके साथ, उसके अगेंस्ट में पैसे देते हैं। तो इफ यू वांट टू ब्रेक समथिंग, यू ऑलवेज हैव टू पुट मनी और पुट एनर्जी इनटू इट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा होता है? हियर a substance is broken into two or more simpler substances. This noise is coming from the fan or what? Yes. एक पॉइंट कम करके देख. I think it's in the highest one. It's reduced by 1 point. Make it 2. I can pull it towards yourself if you want. Two or more simpler substances. So this is one way, the reverse of combination reaction. This is the reverse of combination reaction. Okay. Typically, you can say that an AB, and here we will be doing some sort of energy input to aapka rahega. It will form A plus B. Can be more than A plus B also, but the standard format is AB will form A plus B. ठीक है? एनर्जी इंटेंसिव है। एनर्जी इंटेंसिव मतलब ये एनर्जी पिएगा, बिना एनर्जी दिए आप तोड़ ही नहीं सकते हो इसको। एंड यू आर ट्राइंग टू ब्रेक, बोला था ना बेंडो। बेंडो मीन्स All like breaking bonds. यूजुअली बेंडोज विल ऑलवेज बी लाइक दिस, मैक्सोज विल ऑलवेज बी एक्सोथर्मिक। ठीक है? नाउ व्हेन यू गिव दिस एनर्जी, यस सर। So, what is the answer to the question, like explaining why decomposition is reverse of combination? Do we just write the like two? Decomposition is reverse of combination because you say in a combination, two or more substances react to form one substance, whereas in decomposition, that same one substance breaks down to two or more simpler substances. ठीक है ना? Just the reverse. While combination reaction में आपको energy मिलेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशंस कैसे है? या In the like while writing the answer, we write the definitions and everything. yeah, you can see whenever in science, whenever you ask, suppose the question is explain why, she's trying to ask explain why decomposition is reverse of combination. So first you write what is combination reaction. Combination reaction, two or more simpler substances combine together to form one substance, and you give an example. A plus B forms AB. Example हमेशा दो. Example means the child knows. Whereas in decomposition reaction, one single substance breaks down into two or more simpler substances. AB forms A plus B. In other words, you can, इसके बाद आप real life example देना चाहते तो real life example दे दीजिए. जैसे CaO plus H2O, CaOH2. CaCO3 heat देने से बन जाएगा CaO plus CO2. So always give an example, the definitions and the symbolic manner. इसको समझाने से आपका कोई मार्क्स नहीं काट सकता। You have answered your question absolutely clearly. ठीक है आशका, चले? Okay. So here whenever we are talking about this energy, इस energy की जब हम बात कर रहे हैं, so the energy can come. One is in the form of electricity. इसके बारे में आप grade 8 में बहुत पढ़ चुके हैं. It can come in the form of sunlight, or it can come in the form of heat. ठीक है ना? Electricity means energy is in the form of electrical energy.
sunlight means energy is in the form of sunlight and heat means energy is in the form of heat. ऐसे जहां हम हीट से लाते हैं इन्हें हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल मतलब गर्मी, थर्मल डिकम्पोजिशन. ठीक है. When you are doing with sunlight, we call it photo decomposition. Photo is the word used for sunlight. Photo decomposition. Why is photo the word used for sunlight? Anyone? Photosynthesis भी वहीं से आया है. सनलाइट जो होती है ना उसमें the sun's energy, that is the electromagnetic waves, has photons, right? Fast moving particles which are known as photons. कितना अच्छा बोलते हो, फिर भी क्लास में गायब हो जाते हो बीच बीच में. हमेशा आया करो ना. Good. Photons. And photons से नाम आया है. Photons are particles. They have a lot of energy with them. तो सनलाइट को, लाइट को जब हम बोलते हैं ना पार्टिकल थ्योरी, then light is comprising of photons. फोटोन से आया है फोटो. ठीक है. चलिए, इलेक्ट्रिसिटी से जब आता है तब इसको मत बोलिए इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. लिसिस मींस टू ब्रेक अप, पैरालिसिस शरीर का अंग टूट गया. वैसे इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कंपाउंड टूट गया. ठीक है. जरा इलेक्ट्रोलिसिस को याद कीजिए. इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इफ यू रिमेंबर in grade 8 we saw processes like electrical refining of metals. A metal used to get liberated and some other products used to come out, like say particles which is not our interest, impurities used to come out. Electroplating, in सब में हम क्या करते थे, metal liberation out करते थे. For example, when we go to this process, metals and non-metals में आप एक process पढ़ेंगे, chloralkali process. So in that you will see sodium chloride. Sodium chloride and water will give you three important things which we need in the industry. One will come out sodium, hydrogen and chlorine. All these three gases are very very essential in industry. ये सब आते हैं electrical process से, electrolysis से. तो आइए कुछ electrolysis के process देखते हैं. One of the process is sodium chloride. Sodium chloride, if you make it concentrated, concentrated sodium chloride is known as brine. Brine, brine, brine सुना होगा ना. Stranger Things में brine नहीं सुना? You have seen Stranger Things? Hey, Stranger Things नहीं देखा, where that girl is made to float. Yes. Yeah. So what do? They go on adding salt and salt and salt and salt and try to make it so thick that the density. When you float, you will float only when your density is less than the density of the liquid. Then they will put one egg to see whether the egg floats or not. Once the egg starts floating, the girl will go inside and she will then float on that. ठीक है. चलो, सोडियम क्लोराइड, इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे. No, there is no symbol for electricity. लिखिए रिवर्स. एंड आशका, आपके आंसर के लिए ये तो बढ़िया एग्जांपल बनता है. देखिए, इसी का उल्टा एग्जांपल आपने अभी अभी लिखा है कॉम्बिनेशन में, चेक कीजिए. और ये डिकम्पोजिशन है. आप ये एग्जांपल भी डाल सकते हैं. ओके. Aluminium's refining. Aluminium's refining is done from aluminium oxide. Little bit of general knowledge. Aluminium's ore is known as bauxite. India is very rich in bauxite. However, electricity is not cheap in India. Bauxite जाता है Canada में. Canada is very cheap with electricity because they have a lot of hydropower projects. पानी चारों ओर गिर रहा है ना. Canada से this ammonia's refining, electrical refining. Ammonia's electrical refining is very very costly process. Unfortunately, we as a country, we have a lot of bauxite, but refining is not cheaper option for us. So Al2O3, and this will give you, ये वापस आप पढ़ेंगे metals and non-metals में, 4Al and 3O2. So इसमें 2 डालेंगे. This is also electricity. ये दो ही आपको generally examples में देगा. There is an element whose oxide is refined using electricity to get a pure form of the metal. Identify the type of reaction. यही केस बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है. तो क्या हो गया वो? Decomposition reaction, and the decomposition is done with the help of electricity. ठीक है. Are these two fine? Let's go more now, and let's now go to first sunlight. Number 1, AgCl, silver chloride. Silver chloride and silver bromide both are actually extensively used in photography. अभी आप पूछोगे photography क्या है, because your generation you don't know. You all are all with digital cameras. In our days we used to have films, and the film
cannot be exposed in sunlight. So when light, the moment your photo picture is taken, light enters and this photochemical reaction takes place. Silver bromide is actually coated in the films. People used to even take solutions from studios and do some reverse chemistry to extract silver out of it. ये भी लोग करते थे. So AgCl will form Ag plus Cl2. Why Cl2? Chlorine is a gas. So 2Ag, 2Ag, and now I'm showing the symbol of sunlight. Similarly, chlorine. अच्छा, chlorine और bromine group 17 में रहते हैं. इन्हें हम halogens बोलते हैं. Fluorine, chlorine, bromine, iodine और astenine. Halogens means these gases are known as halogen. The name is halogen. So in grade 11, when you will see that there is methane. What is methane? CH4. Methane के CH4 से, why is methane CH4? Carbon के 4 valency हैं, है ना? Look at carbon's atomic number 6. So 2 and 4. And 4 तो कोई आपको देगा नहीं, 4 आप छोड़ो. So only possibility is you share. So all the 4s are occupied by 4 hydrogen. Hydrogen को भी 1 चाहिए. Have you understood now? So CH4. उसमें से the first reaction which will bother you a lot in grade 11 is when one hydrogen gets kicked out and one chlorine will come and take place. That is called chloromethane. उसमें आप कार्बोकैटायंस पढ़ेंगे क्या होता है, why that reaction. फिर 2 निकलेंगे तो डाइक्लोरोमीथेन, 3 निकलेंगे तो ट्राइक्लोरोमीथेन, 4 निकलेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड. टेट्राक्लोरोमीथेन नहीं बोलते, कार्बन टेट्राक्लोराइड. ये हम भी देखेंगे during our organic chemistry side. Okay, so do you know this? This is silver chloride. Silver chloride. अच्छा, इसमें थोड़ा सा लिख के रखिए, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड में फोटोग्राफी जस्ट एक स्टार मार्क के डाल के रखिए. अगर कभी कोई क्वेश्चन they twist you using saying that a compound used in photographic film development, so you understand that is either silver chloride or silver bromide. This is more used in photography. Just एक स्टार डाल के फोटोग्राफी डाल के रखिए. So this will give you 2Ag plus Br2, और Br2 और Cl2 के बारे में भी थोड़ा सुन लीजिए. What is so great about bromine? Bromine is one of the 2 liquid in the whole periodic table. हमारे periodic table में जितने elements आते हैं उनमें सिर्फ 2 liquid है. एक metal को दिया गया है, एक non metal को दिया गया है. Mercury is a liquid in room temperature. ये लिख रखो, ये सब जनरल नॉलेज है आपको केमिस्ट्री. The entire periodic table में जितने elements हैं, we have got only 2 liquids. 2 liquids. One of the liquid is attributed to the metal family, that is mercury, and one liquid is attributed to the non-metal family, that is bromine or bromine, whatever you say. ये जो bromine है, ये liquid नहीं है. ये bromine is as a gas. Bromine in room temperature is liquid, थोड़ा होने से gas. And लिख के रखिए, ये gas रेडिश ब्राउन कलर का होता है. क्यों लिख रहे हैं? आगे आपको बहुत काम में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. रस्ट को अगर आप गैस बना दोगे, जो कलर दिखेगा वही कलर ब्रोमीन का होता है. और क्लोरीन होता है येलो, पेल येलो. हैव यू सीन क्लोरीन? क्या नो? स्विमिंग पूल में जब नहा के आते हो और तुम्हारे शरीर में एक वो क्या कहते हैं, स्विमिंग गॉगल्स पहन के नहा के आओ. And if the society has done a lot of chlorination, by the time you get out and you take out your specs, people will say, "Oh, my boy is a panda." क्लोरीन बर्न नहीं देखा है किसी ने? कहा तुम लोग? क्लोरीन वाटर में अगर आप ज्यादा स्विमिंग करोगे, every body part, suppose you have wore something called a watch, यहाँ का स्किन अलग दिखेगा, यहाँ का स्किन. क्लोरीन is a bleach ना? Chlorine is a bleach. A bleach is used to clean, it's also used as a disinfectant, but if it's done too much, तो आपके body को भी bleach करेगा. So if you wear very good diver glasses, swimming goggles, and you swim for 2 hours on excessive chlorinated water, the moment you come out and take your glasses, after 1 or 2 hours, everybody will look at you like panda. यहाँ गोल गोल circle, because body का color अलग हो जाएगा, ये color अलग रहता है. Many people have, if you see swimming trunk वंक जैसे ड्रेस निकालते हैं, जहां स्ट्रैप है वहां पे आप देखना पूरा मार्क होके बैठा रहेगा. That is, and chlorine is used always for chlorination for water. Have you drank some water with थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर स्मेल आता है? जैसे आप लोग तो कभी बिस्लरी पीते हो, थोड़ा म्युनिसिपलिटी पानी वानी पी के देखो, that is chlorinated water. So this is used as a bleach also. ठीक है, इतना हो गया.
So we have done, हाँ क्यों ऊपर जाए? बिल्कुल नहीं, बिना क्लोरीनेटेड पानी पियोगे तो ऊपर जाओगे। तुम जो पानी पी रहे हो वो क्लोरीनेटेड होना ही है, लेकिन टू एन एक्सटेंट। रसगुल्ला मीठा है, इसका मतलब तुम्हारे मुंह में सुला के रसगुल्ला ढकेलते रहेगा तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। चले आगे बच्चा। So let's take some photo, and I'm just seeing whether we have some more photo. Okay, chaliye. We go to the next one and we will see heat wale reactions. Calcium carbonate, CaCO3. What is CaCO3? Limestone. इसको हम क्या बोलते हैं? Limestone, calcium carbonate. Also known as limestone. कहाँ रहता है? सर स्कूल में जो व्हाइट वॉश करने के बाद फ्लेक्स गिरते हैं, that is CaCO3, and eggshells are also CaCO3. Got it? CaCO3 को अगर आप हीट करेंगे, so it will give you CaO. Come back, you come back to the same thing with which you made this. This is quicklime. Quicklime means also known as calcium oxide और साथ में CO2. This reaction याद रखना, ये this is a part of your that, and is it the first time you are writing it? I think no, you have written it before, where you understood the story of CO2. CO2 की स्टोरी समझी थी ना? CO2 कैसे बनता है? पहले बाजार से लाओ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में मिलाओ पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉल्ड स्लिकेट लाइम। एक क्लॉथ से उसको निकालो फिल्टर करके, दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर। उस लाइम वाटर में CO2 पास करेंगे तो वो फॉर्म करेगा CaCO3। लेकिन इसी CaCO3 में अगर हम एक्सेस लाइम वाटर दे देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म कर जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट वाटर सोल्यूबल, बट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज वाटर सोल्यूबल। ये पूरा रिएक्शन लिखवाया था, देख लीजिएगा एक बार। The substance which gives the shiny finish. शाइनी फिनिश। जो पेंटर आपके वॉल पे पेंट कर रहा है ना, ही इज पेंटिंग स्लेकेट लाइम। दैट स्लेकेट लाइम इज रिएक्टिंग विद द CO2 in the atmosphere, and then it is turning into that finish, that beautiful white जो आपको दिखता है। थोड़ी देर में होता है। इंस्टेंटली करना है तो बहुत बच्चों को ले जाइए और बोलिए प्राणायाम कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ही जाओ तो वो रिएक्ट करेगा, और क्या। ठीक है ना? क्लियर? चलिए एक और लिख लेते हैं। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, इसको हमने हीट किया। सो नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो ये बनेगा लेड ऑक्साइड, देन इट विल फॉर्म NO2 एंड इट विल ऑल्सो फॉर्म O2। वाटर नहीं फॉर्म होगा, वाटर है, H नहीं है ना। वाटर फॉर्म करने के लिए बाइकार्बोनेट सॉल्ट होना चाहिए। So this is known as lead nitrate. No direct, nobody will ask you a direct question that you write this reaction, ऐसा कुछ कोई बोलता नहीं है आपको। So this should become 2Pb 2PbO और ये 4 हो जाएगा ना? हाँ 4 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। That's all for decomposition. I don't think we have anything more than this for decomposition. ठीक है, चलिए आगे। What is the next one? Displacement. Displacement reactions. Displacement reactions are of two types, single and double. All the single displacement reactions are examples of redox. Sorry, होना ही पड़ेगा redox। एक अच्छा बच्चा गंदा बच्चा बनेगा ना, और एक गंदा बच्चा अच्छा बच्चा बनेगा, होना ही पड़ेगा। आइए पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। यूजुअली आप सोचो सिंगल डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा। There will be one participant in free form, another participant will be in a compound state. उस कंपाउंड स्टेट में उसी फ्री फॉर्म के पार्टिसिपेंट का एक कंपटीटर रहेगा,
जो कि उससे कमजोर होगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी, दैट्स व्हाई ही विल बी एबल टू किक हिम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसका रूल कैसा रहता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अ हायर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its aqueous solution, AQ लिखा मैंने, aqueous solution, higher reactive will displace। क्यों सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं? एक पेयर डिस्प्लेसमेंट होता है, ओनली वन पेयर मींस somebody will displace someone else। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मजेदार बताएंगे, देखो। So to know single displacement reaction, you should also know what is the reactivity series। इसके क्वेश्चंस इस चैप्टर में भी आ सकते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में भी आ सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी आ सकता है, यानी कि तीनों से घुमा के भी इसमें क्वेश्चन डाल सकता है। कौन सा रिएक्टिविटी सीरीज लिखा था ना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ीब्रा, instead try learning how copper saves gold, that is the reactivity of all। तो ऐसे लिख के रख देते हैं प्लीज का मतलब क्या हो गया? प्लीज के बाद कौन आता है? स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा। केयरिंग मतलब अभी तो मैं एटम्स लिख रहे हैं, ज़ीब्रा। इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर, तो हाउ का लिख लो भाई, हाउ काम में आता है। हाउ ये नॉन मेटल है लेकिन ना, हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है? ये ऑर्डर में ही होगा हमेशा। अब एक एग्जांपल देते हैं आपको। SN इज स्ट्रोंशियम। हाइड्रोजन नॉन मेटल है ना बेटा, बाकी सब मेटल है एक्चुअली। और एक भी आता है इसमें, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरिंग ज़ीब्रा, कॉलिंग मी अ केयरिंग। ये कार्बन भी आता है, ये आपको 11 में काम में आएगा। क्यों 11 नहीं 12 में काम में आएगा। हम कार्बन क्यों लिखते हैं, इसलिए अभी नहीं लिखा, ठीक है? सो लेट्स सी हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल दैट दे विल गिव हियर इज जिंक आएगा एज सॉलिड and it will react with copper, right? Copper से copper sulfate, and copper sulfate कैसा है? aqueous में है, और ये क्या फॉर्म करेगा? जिंक सल्फेट। इस रिएक्शन को हम थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे, और कॉपर फॉर्म करेगा सॉलिड एंड ZnSO4 AQ। पहले ये रिएक्शन लिख लीजिए, देन धीरे धीरे समझेंगे, बहुत कुछ समझना है इस रिएक्शन में। जिंक इज अ मेटल, ओके? एसोसिएटिव आइडेंटिटी जैसा है, और मेरे सर जैसा याद करोगे तो वो इसके गर्लफ्रेंड को भगा के ले गया, बस वो इसमें लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। आओ, कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कोरल ब्लू कलर होता है, इसे हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। अब ये तो हुआ रिएक्शन के मोड में। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फिजिकली हाउ इट हैपेंस। लेट अस टेक कॉपर सल्फेट इन अ बीकर, so it will be blue in color, coral blue, बिल्कुल हमारे आराफात के बैकग्राउंड जैसा कोरल ब्लू, ठीक है? उसमें जैसे ही आप एक जिंक प्लेट डाल दोगे, you put a zinc plate, reaction has happened. What are the characteristic of reaction? Evolution of gas। तो यहाँ पे तो मेटल प्लस एसिड तो नहीं हो रहा है, कोई गैस नहीं आ रहा है। You will see a change in color। ये कॉपर सल्फेट अपना कलर खोएगा। ये स्टोरीज क्यों बता रहा हूँ? ये स्टोरीज आप समझेंगे तो ही आप आगे जाके इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। So the copper sulfate will, what it will do? It will lose its color. Once it loses its color, why is it losing its color? Because copper sulfate is getting transformed to zinc sulfate, blackish जैसा होना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉपर कहाँ आएगा? जो जिंक का प्लेट हमने डुबोया था ना, उसके ऊपर गोल्डन डिपॉजिट्स आना शुरू हो जाएगा। ये कॉपर जाके उस जिंक के प्लेट के ऊपर आएगा। Copper sulfate is known as blue vitriol. That is the trivial name. हाँ, all once। अरे जब तुम एक्वेस लिखा है तो ये नहा चुका है ना, वो क्या
That we will do when we see salt. Copper sulfate is known as blue vitriol. ब्लू विट्रॉल में जैसे ही आप जिंक को डालेंगे, पहले इस रिएक्शन, तो ये क्वेश्चन कहां आ सकता है? चेंज ऑफ कलर में भी आ सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आ सकता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन में भी आ सकता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, सल्फेट -2 होता है तो कॉपर +2 है, यहां पे सल्फेट -2, तो सल्फेट इज नोन एज माय स्पेक्टेटर आयन, खाली मजा देख रहा है। और ये क्या बन गया? +2, और ये बन गया फिर से 0। सो 0 से +2 बनना मतलब यहां से यहां तक क्या हुआ? आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, और इसका क्या हुआ है? यहां से यहां तक ये रिडक्शन हुआ है। तो आपको यहां से सवाल पूछ सकता है, हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट? One type of question. Define displacement, single displacement reaction with a suitable example, or define a displacement reaction which can also be shown as a redox reaction. Show that displacement, single displacement reactions are also redox reaction. Competency based है, कुछ भी आपको पूछे आपका दिमाग खुला रहना चाहिए. And chemistry in any exam is the literature of science. If you want to do good in any competitive exam, chemistry is your spinner in the first पावर प्ले, ओनली 2 men आउटसाइड, इसी को ही लोग स्कोर करते हैं, ये इजीएस्ट है। फिजिक्स और मैथ्स में टफ हो जाता है, जितना आप केमिस्ट्री स्कोर करेंगे आपका मार्क्स उतना ही बढ़ेगा इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो समझिए इसको, ये चीज समझ में आया? अच्छा, अब दूसरा एक चीज देखो, सपोज मैं ऐसे कुछ लिखता हूं, मान लो Cu, और इसमें बच्चे गलती करेंगे, ZnSO4 gives me CuSO4 plus Zn, ठीक है? If you see from a chemical equation perspective, there is nothing wrong in this. इसमें कुछ भी wrong नहीं है, ये पूरा balanced है। लेकिन ये रिएक्शन कभी होता ही नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये रिएक्शन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? कॉपर में औकात ही नहीं है कि वो जिंक को डिस्प्लेस करे। देखो कॉपर कहां पे है? यहाँ पे है। जिंक कहां पे है? जिंक यहाँ पे। कॉपर में औकात ही नहीं है कि वो जिंक को डिस्प्लेस करे, तो आपको बौखलाने के लिए भी ये रिएक्शन लिख देगा। यहां से हमने एक और चीज सीखा, द मदर इज ऑलवेज द केमिकल रिएक्शन, द चाइल्ड इज ऑलवेज द केमिकल इक्वेशन। जस्ट बिकॉज यू आर एबल टू राइट ए इक्वेशन डज नॉट मीन द रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन को एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझने के लिए इक्वेशंस बनते हैं, इक्वेशन से रिएक्शंस नहीं बनते हैं। आर यू गेटिंग इट? Like nowadays, your generation, anything you ask who are working, they'll say, sir, this is a system issue. System को किसने बनाया? हमने बनाया ना. We have created system. So never say that system. That means you are an idiot. You have created the system. There cannot be bug in the system. If there's a bug, then clean that system. So equations do not represent reactions every time. But every reaction can be represented by an equation. अगर रिएक्शन होता है तो उसका इक्वेशन होएगा ही होएगा, लेकिन अगर इक्वेशन लिख सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिएक्शन होगा। जैसे इसमें मैथमेटिकली कुछ भी गलत नहीं है, मैं इसको और तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखूंगा, कॉपर इन S AQ फॉर्म्स AQ, and then a student wrote a reaction, competency based questions, wrote an equation and started to proceed with this experiment, however could not find any characteristic of his experiment, not reaction. Reaction to hai hi nahi. What he is doing is an experiment. He is doing an experiment and he is unable to observe anything. What are the observations? No effervescence, no change in color. Why? Sir, the student is a dumbo. He is trying to displace a more reactive with a less reactive, है ना? इसके पास गाड़ी है, बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस पे, ये क्या गरीब्स इसको नहीं हटा सकता, तो गरीब्स ही रहेगा। Akshay, did you understand this? So whenever this, okay, now comes another question, like many of you have told you in grade 9 also, we all used to read about a process called galvanization. Galvanization is the process, what is galvanization? Galvanization is the process in which an article of iron is dipped in a solution of molten zinc to prevent it from corrosion. किसको किसमें डुबाया? आयरन को जिंक में डुबाया। जरा यहां देखिए तो आयरन यहां पे है, आयरन में कोरोशन हो रहा है ना, दैट मींस आयरन इज रिएक्टिव। हमने आयरन को किसमें डुबो दिया? जिंक में डुबो दिया। हाय बच्चे को ठंड लग रहा है, आपने तो उसका जैकेट भी खोल दिया है, और इसी को लिख के आप नंबर लेते थे। अब अक्षत अपने डैडी को पूछ सकते हैं, ही इज इन नेवी,
शिप का जो सामने वाला पोर्शन होता है ना, ऑल फ्रिगेट क्लास शिप्स, वी हैव ऑल द सोनार्स आउट देयर, सो शिप इज ऑलवेज इन अ मराइन वाटर। शिप के उस पोर्शन को हम मैग्नीशियम से कोट करते हैं। वहां तो टी शर्ट भी खोल दिया। शिप इज इन मराइन वाटर, मराइन वाटर इज कोरोसिव। इफ यू गो टू वाइजैक एंड इफ यू सी एनीवन्स डिश एंटेना, आप बोलोगे उसके घर में डिश एंटेना है, पर सर्विस प्रोवाइडर कौन है नहीं पता, सब लाल है। सन टीवी भी लाल है, डिश टीवी भी लाल है ना, सब लोगों का डिश है, टाटा स्काई भी लाल है। सो मच ऑफ कोरोशन टेक्स प्लेस इन वाइजैक। सो you are taking the ship and you are coating it with what? Magnesium. ऐसा कैसे? लेकिन यही आंसर लिख लिख के आप नंबर ला रहे हैं क्या? Galvanization is a process in which an article of zinc, iron is dipped in a molded solution of zinc to prevent it from corrosion. Ma'am, I wrote it. Ma'am, give me marks. But what did you do? आपने इससे कोट किया है। रीजन है, जिंक और मैग्नीशियम में एक खासियत है, वो सलमान के मूवी जैसा बॉडीगार्ड, एक बार जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, यू डैम कैन नॉट एंटर और ब्रेक इट्स कोटिंग। एक वो मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाएगा, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। वंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, उसको भेद करना बहुत ही मुश्किल है। लेस रिएक्टिव नहीं, इज हाईली हाईली इनर्ट। सलमान खान जैसे, एक बार जो मैंने कमिटमेंट दे दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता हूं, ये वैसा ही है बिल्कुल। एक बार जो मैंने ऑक्साइड फॉर्म कर लिया तो फिर मैं किसी का नहीं सुनता। इसीलिए हम गैल्वेनाइज करते हैं, एंड गैल्वेनाइजेशन इज अ वेरी चीपर मेथड ऑफ मेटल प्रोटेक्शन। यस, there is a question in NCERT, like why is the magnesium ribbon stained with sand? हाँ, मैग्नीशियम रिबन, वो अच्छा वो भी बताता हूँ। मैग्नीशियम रिबन वाला क्वेश्चन खूब आएगा। मैग्नीशियम रिबन इज अ सेलोटेप जैसा एक रिबन आता है लैब में। मैग्नीशियम क्या रहता है? गोज ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। आपने मैग्नीशियम रिबन खरीदा और उसको रख दिया, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर जाएगा। सो यू वांट टू शो द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम बर्निंग इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड नेक्सो है वो, एक्सोथर्मिक होना चाहिए। लॉट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। Magnesium burns with a brilliant white light. You use the word brilliant. Remember, आपने दिवाली में पेंसिल जलाया होगा ना, पेंसिल का जो व्हाइट लाइट आता है ना, वो मैग्नीशियम के लिए आता है। मैग्नीशियम has got a brilliant white or dazzling white light. You will not get that light because the protective coating layer of magnesium, सलमान खान बन के बैठा है वो। तो पहले आप घिसो and scrape off the oxide layer. Anything will always form an oxide layer. आप सोचो, ये जब आप स्कॉच ब्राइट से साफ करते हो किसी भी चीज को, राइट, यू नो, पीतल मतलब ब्रास जिसे हम कहते हैं, तो ब्रास के चीज जैसे ही आप रखोगे डल हो जाते हैं। लाइक somebody has got that in your school during annual day, they will always have one big दिया वाला lightning the lamp by the chief guest। अब एनुअल डे के पहले दिन देखना, कोई अम्मा है ना, नींबू और लेके उसको घिस रहा है पूरा, नहीं तो चमकेगा नहीं वो, that has become dull। One way of using, why do we use Scotch Brites and all? Scotch Brites and all have got all metallic fibers on them, and that metallic fiber has to be more reactive than that particular dirt, तभी ना वो dirt को displace करेगा। समझ में आ रहा है? So we always remove the oxide layer. Even jewelries also, you are not wearing 100% pure gold, so the jewelries will also undergo a little bit of oxidation over time. And one of the best thing, have you seen some a dabba called Brasso? बहुतों के घर में रखते हैं। Brasso is a small solution dabba with a red cap. Many people can't resist its smell. जिनके घर में बहुत सारे पीतल के ये सब होता है ना, मूर्तियां एंड एंटिक्स, ब्रासो से आप क्लीन करोगे तो एकदम जगमग हो जाता है। बट ब्रासो का स्मेल इज हाईली, if you can bear paint smell, paint means oil paint, the one way that put on doors and glass, like I cannot smell too much of paint का स्मेल, वैसे ब्रासो का स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है। एंड दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंट्स। सो ये रिएक्शन समझ में आया। इस रिएक्शन को एक बार फिर से वी विल सी इट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आल्सो। सो व्हाट वाज आवर रिएक्शन? सॉरी, आवर रिएक्शन वाज our reaction was Zn reacts with CuSO4. CuSO4 is in aqueous state, and this will give me ZnSO4, and that will be in the aqueous state, and Cu will be liberated out. ठीक है ना? This is solid and this is solid. So let us see the reaction in its electronic form. तो आपको mechanism पूरा clear हो जाएगा।
First we will take CuSO4, and since CuSO4 is aqueous, it will dissociate into its ions, which are Cu2 plus and SO4 2 minus. Have you understood? We will be now concentrating on this part. Cu was at, sorry. So Cu, if you CuSO4. So copper जो हमारा है, ये चलो ये एक हो गया. And let's look at zinc. ZnSO4 में कैसा है बेटा? ZnSO4 में Zn is in 2 plus and SO4 is 2 minus. ये चीज इस साइड में है, ये चीज इस साइड में है. How the reaction proceeds? Let's see. First of all, zinc as solid atom will form into zinc 2 plus ions and will lose 2 electrons. 2 electrons lost, 2 positive charge created. इसको हम क्या बोलेंगे? Cation. और क्या हो गया प्रोसेस? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जरा आप प्रीवियस स्लाइड भी देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं होता है तो ऑक्सीडेशन, ठीक है ना? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, Zn2 प्लस बन गया, तो हमारे सर की भाषा में अच्छा बच्चा गंदा बच्चा बन गया. ठीक है, और यहाँ पे कॉपर का डिसोसिएशन कैसे हो गया है? कॉपर 2 प्लस एंड SO4 2 माइनस. हैव यू अंडरस्टूड? इसको थोड़ी देर के मिटा दो, जरूरत नहीं, ऐसे ही देखो. Now the next reaction, this is first one. The next is copper sulfate, which is in aqueous state, will now become copper 2 plus and SO4 2 minus. ठीक है, so SO4 is the common ion, है ना? वही तो common ion है. अब competition होगा जिंक और कॉपर में. Who is more reactive? Zinc is more reactive. ठीक है ना? So what does zinc do? Zinc 2 plus है. Zinc 2 plus reacts with SO4 2 minus, forms ZnSO4. Clear? तो वही स्टेट है जिंक. अल्टीमेटली जिंक का स्टेट कैसा बन रहा है देखो. फाइनली रिएक्शन ऐसा है, जिंक 0 से जाके +2 पे गया, तो जिंक का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन. क्लियर है? ओके. एंड देन वी सी कॉपर. अब कौन कौन बचा है जरा रिएक्शन में देखो तो. कौन कौन चले गए? ये भाई साहब चले गए. दिस इज गॉन, दिस इज गॉन. अब ये बचा है और ये बचा है. अब ऐसे तो जा नहीं सकता है ना हारा हुआ इंसान बनके. तो क्या बोलता है? वो बोलता है मेरे को खा लो और क्या करो. ये कॉपर 2 प्लस उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खा लेता है और बनता है Cu. सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, ये है रिग. So this is reduction. This is the entire mechanism of the reaction. So that why I did it in detail, you should never forget, you should always understand कि आपको अगर किसी ने भी कंफ्यूज कराने की कोशिश की कि कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक, वो होता नहीं है. आपने इस रिएक्शन को पूरे डिटेल में देख लिया, कलर के नाम पे देख लिया है, रेडॉक्स के नाम पे देख लिया है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट के नाम पे देख लिया. करेक्ट? Shall we go for some reactions then? Single displacement भर भर के है. चलिए, is there any question on copper sulfate and zinc? This is a very common question that you will get. Very very common question. चलिए, अब कुछ लिखना शुरू कीजिए. तो पहला वाला तो लिख ही दिया. The next one. Next one is copper sulfate reacts with magnesium. मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा. क्या होगा? Magnesium sulfate. Magnesium is in group 2, so it will always form Mg2 plus. So MgSO4 plus Cu. Achha, does anyone have a doubt? Children, don't hide from me. When I wrote the first part of the reaction, our friend Atish told me magnesium sulfate. Magnesium sulfate लिखते वक्त किसी को भी डाउट हो रहा है कि वो MgSO4 बनेगा या MgSO4 2 बनेगा? अगर ये डाउट है तो हाथ उठा दीजिए, अभी क्लियर कर देंगे. Does anyone have this doubt? You have a doubt? Good. Angad has a doubt. Means what I'm trying to say, if I don't write this and I ask you to do this reaction on your own, so Atish told that we will be getting magnesium sulfate, which I agree. Now when you write magnesium sulfate, क्या आपके मन में डर होता है वो MgSO4 होगा कि MgSO4 3 होगा? वो कैसे समझेंगे हम उसको? इसलिए बोलता हूं पीरियोडिक टेबल नहीं रखते हैं ना, पीरियोडिक टेबल रखा कीजिए. In group 2
ग्रुप 2 में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, है ना, ऐसा कुछ है। आपको 0 to 20 जानना चाहिए, यानी कि दिस इज फॉर योर इंपॉर्टेंस। ये लोग कहां पे है? ग्रुप 2 में है। एनीवन हु इज इन ग्रुप 2 विल ऑलवेज फॉर्म एलिमेंट 2+। 2 मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, वो दोनों इलेक्ट्रॉन खो देगा। और ग्रुप 1, अगर आप ग्रुप 1 में होते है ली ना की रब से फरियाद, आपको इतना जानना चाहिए। ये लोग सब बनेगा एलिमेंट प्लस, ठीक है। सल्फेट, इतना तो हम जानते हैं कि सल्फेट -2 है। -2 के साथ न्यूट्रल प्रोडक्ट बनने के लिए कौन आना पड़ेगा? +2 आना पड़ेगा। तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट को शादी करेगा, एकदम ओम स्वस्ति न स्वाहा, -2 +2। लेकिन अगर सोडियम शादी करने आएगा, एक सोडियम प्लस होके आ रहा है। देखो हमारे पास कौन है? सल्फेट, और सोडियम अगर आया, न्यूट्रल नहीं हो रहा है, एक और है, अब होगा, इसलिए क्या बनेगा? Na2SO4। और यही अगर, अब आप देखो कितना इजी हो गया आपके लिए ये सब प्रेडिक्ट करना। अब सल्फेट की अच्छी शादी किस किस के साथ हो सकती है? बेरिलियम के साथ हो सकती है, मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम। क्लियर? लाइफ में नहीं भूल सकते हो। उसी तरह अगर शादी के लिए क्लोरीन राजी है, तो इसकी अच्छी शादी किसके साथ होगी? ग्रुप 1 के साथ। और अगर आप पीरियोडिक टेबल को ऐसे फोल्ड कर दो, है ना, मैप को फोल्ड करते, यू नो द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड अ मैप, देन यू विल सी दैट ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के बीच में इनर्ट गैसेस खड़े हैं। यस और नो? दिस इज 17, दिस इज इनर्ट गैस एंड दिस इज 1। ये मैप को रोटेट कर दो, कैसा हो जाएगा? द इनर्ट गैस इज जस्ट सेपरेटिंग दिस स्टेम। ये मेरे साइड में लुटेरे, ये मेरे साइड में दानवीर सब बैठा है। The metals are all releasing electrons, the non-metals. Look at this family, they are all going to lose 1 electron. And halogens कैसे है? Halogen देखना है? Halogen में कौन कौन आएगा? ग्रुप 17 देखो। अरे यार मजा नहीं लेते ना, रट्टू तोते की तरह केमिस्ट्री पढ़ते, इसमें तो मजा नहीं आता है। आ जाओ, क्लोरीन, क्लोरीन, फिर क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब आप, ये सारे हैं ग्रुप 17 में हैं। Group 17 मतलब in their last orbital they are having 7 electrons. They are desperate for 1 electron. मिलते ही खा लेगा। और ये लोग कैसे हैं? इनके लास्ट ऑर्बिटल में है 1 इलेक्ट्रॉन। हमको ना 60 बच्चा चाहिए। कोई बोलेगा 7 बच्चा तुम्हें कोई देगा ही नहीं, तो क्या करें? जो 1 बच्चा है उसका गला घोट दो। तो ये कहता है हमको दे दो ना वो बच्चा, तो दे देता है ना। इसके साथ इसको शादी कराइए, बढ़िया शादी होगा, इसको शादी कराइए, बढ़िया होगा, इसको शादी कराइए, बढ़िया। सब प्रोडक्ट आप जानते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम, सॉरी एन नहीं, Na, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फ्रेंडशिप। है ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, या है ली ना की रब से फरियाद, रेडियम। बहुत सारी, इतने नहीं चाहिए आपको, इतना चिन्ह से। पहला काम है, जब मैं बोलता हूं ना पीरियोडिक टेबल रखो, वो मत रखो। टेबल के सामने दिशा पतानी का फोटो रखो, उसको उतार दो। बेटा हम ग्रेड 10 में हैं, हम अभी पीरियोडिक टेबल का फोटो रखते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर दिशा पतानी फोटो लगा लो। अब ये मत पूछो कि दिशा पतानी कौन है, हमें नहीं पता। इतना भी भोला मत बनो, ठीक है? क्लियर है? अरे भाई साहब ये क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। अगर हम ग्रुप 13 को देखें, ग्रुप 13 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। ये लोग कैसे फॉर्म करेंगे? 3+। एल्यूमिनियम की क्लोरीन से शादी कराइए, कंपाउंड कैसा बनेगा? AlCl3। एल्यूमिनियम की सल्फेट से शादी कराइए, एल्यूमिनियम इज 3+, SO4 इज 2-, 3 और 2। चलो क्लास 8 में एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 6। तो हमारा क्या होगा? Al पे होगा 2, सॉरी इसमें तो हम ब्रैकेट नहीं डालते हैं, Al2
SO4 होल 3। अब यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे 3 प्लस है। 2 इंटू 3 प्लस इज +6, 3 इंटू 2 माइनस इज -6। जिसको जिसको ये गणित हुआ समझ में आया उसका उद्धार होगा, नहीं आया तो तोते की तरह रटोगे, केमिस्ट्री निकाल दो, कल से मैं 100 रुपया चाहूंगा आपको, वो वाला हाल होगा। मर्जी आपकी। चले रिएक्शंस लिख लेते हैं, ये खत्म ही नहीं होगा नहीं तो। चलो इसको आप कंप्लीट करो। CuSO4 प्लस Fe। एंड व्हाइल आई एम राइटिंग ऑल दिस थिंग्स प्लीज मेक नोट, लिखते ही डिस्प्लेस मत कराओ, अंधे क्या बोलूं, डोंट बी ए शीप, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ये देख के करना, लेकिन हाँ ऐसा करते करते तुम्हें कोई ऐसे लिख देगा, देखो Zn प्लस CuSO4, तुम क्या लिख दोगे? हाँ करेक्ट है, होता है ना वो। इतना डर क्यों रहे हो? किसी ने अगर ये लिख दिया तुम्हें, ये लिख दिया तो ये नहीं होता है, इसीलिए देते ही मत लिखो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। चिड़िया उड़ तोता उड़ वैसा वाला गेम हो गया ये, ठीक है। फिर हाथी उड़ तो हाथी को भी उड़ा रहे हो। आयरन सल्फेट FeSO4, आयरन इज 2। हाँ पर 3 नहीं, आप 2 ही लिखिए। देन CuCl2, क्या नाम होगा इसका? कॉपर क्लोराइड रिएक्ट्स विथ लेड। क्या लेड ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ बिल्कुल है। ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर, लेड की औकात बड़ी है, कर देगा भाई साहब। ये AgNO3 इसके साथ कॉपर का रिएक्शन। अब देखो ये मजेदार गेम है। 2AgNO3 लिख दिया मैंने। कॉपर हमेशा कमजोर है, पर कॉपर से भी ज्यादा कमजोर कौन है? सिल्वर। That's why you wear silver ornaments and you bathe every day, nothing happens. सिल्वर रिएक्टिव है ही नहीं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप गोल्ड पहन लो, मेरे पास तो और भी ज्यादा पैसा है तो आप प्लैटिनम पहन लो, है ना, वो लेस रिएक्टिव है। तो क्या कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कॉपर सेव्स गोल्ड, तो क्या बनेगा? नाइट्रेट। नाइट्रेट इज व्हाट वैलेंसी? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रेट? नाइट्रेट कम्स फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। पीटूंगा ना, तुम लोगों को कुछ याद नहीं रहता है। नाइट्रेट कम्स फ्रॉम HNO3 माइनस प्लस, नाइट्रेट इज 1 माइनस, दैट्स व्हाई सिल्वर इज 1 प्लस। अपना पेपर पलटो और AgBr AgCl रिएक्शंस देखो, क्या लिखा था? AgBr2 लिखा था कि AgBr? AgBr लिखा था। हाँ तो इसका मतलब क्या है? Br कहां पे है? ग्रुप 17 माइनस 1, इसका मतलब Ag क्या हुआ? प्लस। AgCl माइनस प्लस, AgNO3। लेकिन जब कॉपर के साथ बनेगा, इसलिए तो मैंने यहाँ पे 2 लगा के दिया था तुम्हें। हाँ हाँ समझ में आ गया सर, बहुत ही हम जी हैं सर, जी मतलब समझे क्या? जी है एक मालवाही प्राणी, गुड्स कैरिंग एनिमल। जी मतलब क्या? हाँ गधा कभी। और यू नो ये हो गया। अब ये सब करो जल्दी जल्दी, चलो Fe प्लस 2HCl, खत्म करो इसको। 2 प्लस Mg प्लस 2HCl, ये सब ये रिएक्शंस आप फिर नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे। ये रिएक्शन कैसा है? कैन एनीवन टेल मी? लुक एट दिस एंड से मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड लिबरेट्स hydrogen gas. You can also say it in terms of single displacement reaction. You can also show this as evolution of gas. अगर याद नहीं आ रहा है तो ये बनेगा FeCl2 plus hydrogen 2. And what is the test of hydrogen? So a lot of bubbling happens. Pop sound क्या? Popcorn बनता है। Lighted matchstick लेके आओगे तो pop sound आएगा। हो गया ये? Okay, few more and then we'll conclude. लिख लो। और sodium plus water. Sodium will displace the hydrogen. NaOH. Na2 नहीं होता है बेटा। वाटर का वाटर इज ए न्यूट्रल प्रोडक्ट। एक एसिड और एक बेस रहता है इसके पास, एक असुर और एक देवता मिलके न्यूट्रल मानव जाती है ये, इसलिए इसको आप पी पाते हो। हाँ OH is minus, Na is in group 1,
है लीना की, ली ना 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 ना, ये ना है, हो गया। क्लोरीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये कैसा रहेगा जरा देखो तो, इसमें क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, देखो पोटेशियम एंड क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन आयोडीन को निकाल देगा, KCl फॉर्म करेगा और आयोडीन लिबरेट हो जाएगा। ये किसमें पढ़ा था आपने, पोटेशियम आयोडाइड में येलो रहेगा, आयोडीन इज येलो येलो, ठीक है, इसमें भी जा सकता है। कॉपर ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम, अब कौन रिएक्टिव है बोलो, सर एनी डे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कॉपर को बोलेगा भाई साहब जरा साइड जाइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, लिख लो लिख लो लिख लो भाई साहब। और एक और रिएक्शन है, इसे हम चैप्टर 3 में देखेंगे, Fe2O3 प्लस 2Al, Fe2O3 प्लस 2Al, यहां पे कौन ज्यादा रिएक्टिव है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ कैरिंग जीब्रा, इंस्टेड इन एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, Al2O3 प्लस 2Fe। बच्चों ये रिएक्शन हम बहुत पढ़ेंगे, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब है ये जो आयरन निकलेगा ना, ये लिक्विड फॉर्म में निकलेगा। अब बोलो इसका यूज कहां पे है, इसका यूज है रेलवे ट्रैक वेल्डिंग में। जब रेलवे ट्रैक्स में क्रैक हो जाता है तो आप रेलवे ट्रैक को खोल के तो नहीं ला सकते, we call this process as in situ welding. In situ means the welding is performed at the site and this reaction is known as aluminothermite reaction। ये हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री का आप गूगल करके यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, it will be so red hot ये reaction, some more catalysts are added, the iron will actually melt out and that molten iron will go and fill the railway track cavity, एकदम क्लोज वोज करके डालते हैं। Sir, हाँ, फेरस फेरिक ऑक्साइड, यस sir, for the sodium reacting with water, the equation is not balanced here. सोडियम रिएक्टिंग बैलेंस कर दीजिए, 2 सोडियम ले लीजिए, सोडियम रिएक्टिंग विथ वाटर ना, इसमें क्या आएगा, एक हाइड्रोजन भी निकलेगा, तो 2 सोडियम लेते हैं, 2 तो कितना हो गया, 2 और यहाँ पे एक 2 डाल दीजिए, 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 सोडियम, अब बैलेंस हो गया। लो बेटा, ये कौन है, इसको भी जान के रखिए, दिस फेलो इज नोन एज किंग ऑफ बेस, ये बेसों का राजा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज caustic soda. What is caustic soda? Sir, we cook lot of tadka type of food in our home and our chimney, you have baffles रहता है ना चिमनी में, there if you put your hand gets stuck, so much of oil deposit my mama puts on that, so how do you clean it? उसको साफ करने के लिए घिसोगे तो सारा जिंदगी जाएगा। In order to clean those baffles, all you need is a small tub and your favorite Netflix serial, start it and put सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर ले लो और उसमें कॉस्टिक सोडा डाल दो और बैफल्स को उसमें फेंक दो, जब तक आपका एपिसोड खत्म होगा तब तक बैफल्स शाइनिंग क्लीन होके बाहर आएगा। Amazon में भी मिलता है, थोड़ा महंगा है, और नहीं तो गधे की तरह बैठ के घिसो घिसो घिसो, फिर भी देखना चिपको चिपको चिपको। ये अंडरस्टूड? चिमनी के ऊपर कभी हाथ लगा के देखो, जो घर पे इतना तड़का डालते हो ना उससे तो ऑयली हो जाता है। इंडियंस आर फेमस फॉर क्रिएटिंग दैट किचन, तो उसको अगर आपको साफ करना है तो कॉस्टिक सोडा इज ऑलवेज यूज फॉर क्लीनिंग, एनी ऑयली चीज को क्लीन करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रह गया हमारे पास, हमें एक और क्लास लगेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रहेगा। डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ क्या होता था हमारे सर ना, जैसे ये तुम दोनों, तो इसमें एक और चीज है, जैसे हमारे सर हमें हमेशा बोलते थे कि जैसे मैंने गधा बोला ना तो उस बॉकर लग गया, सर इज कॉलिंग मी गधा। नो दैट इज एन एप्रिसिएशन। आवर सर यूज्ड टू कॉल अस नालायक। नालायक हम लोग बोलते थे इतना बुरा क्यों बोल रहे हो सर, तुम चीज को ठीक से नहीं देख रहे हो, हमने तुम्हें लायक बुलाया,
और हम बोल रहे हैं ए लायक ये ना कर, ओ केपेबल प्लीज डोंट डू, वी आर नॉट कॉलिंग यू इनकेपेबल। तो गधा नहीं है वो है, हाँ बहुत अच्छी चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास ऑन संडे वी विल बी गोइंग अहेड विद सम मोर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड टच इनटू हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में घुसेंगे। No, they're not identity. Some practice questions we will do. Questions. Yeah. So we'll do. I got children. Please listen to me. Listen. Can I talk with your permission? So I understand that there will be some hiccups on NCERT exercise. So what we will do in next class, first we will take up everyone's doubt one by one on the NCERT exercise. Okay, आपको इसमें भी doubt हो सकता है कि इसमें identities में identity वाले exercise, that's the third exercise. Whatever doubts you have on NCERT, we'll pick them up. We'll solve couple of questions on NCERT on trigonometric identities, some more, and then I will be leaving identities to you to keep on practicing. जैसे ही आपको doubt आएगा, like the other day Vedant posted one query. If there's a query, post it, I'll solve it. And we will move slowly into heights and distance, which are really interesting problems. आपको मजा आएगा heights and distance करके. Identities is all about practice. लेकिन आपको कोई भी चीज अटक रहा है, next Sunday we will do those. ठीक है? Yes. Closing off then. And thank you for joining. We'll meet up again. Oh, slowly. Bye-bye.